Hi guys, so very good evening to all of you. Welcome to safalta.com. आप सभी का स्वागत है. Please join this session with me. And today this session is all about CUET exam based. So this is the first session based on CUET exam. So I'm Kumar Chandan, your quant faculty, and today this session is all about your calculation technique. So this is the first session. Okay, so your class schedule is like 6:30 to 7:30. So we'll discuss first calculation, because you know in your quant section calculation is very important. And guys, please everyone join. Okay, Dilnawaz Ahmad, very good evening. Then Gajan Singh, good evening. So guys, this session is all about the calculation technique, and why I'm going to discuss the first calculation technique, because for every chapter if I talk about the quantitative aptitude, numerical ability, so definitely you have to you can say like very good in your calculation, and that calculation part will be a strong, your automatically speed will boost up. That is important. Okay, so that's why this is the important one. Okay, so we'll discuss the fast calculation technique today. Part one means today we'll discuss the technique part one. We have 2 to 3 part, and I'm going to discuss each and every technique in this session one by one, and we'll cover all those technique, all those tricks that will maximize your exam, maximize your marks in your exam, you can say like that. Okay, so good evening. So guys, everyone join the session with me. So first I introduce myself. As I already told you, I'm Kumar Chandan, and I'm having total 8 years of experience in the teaching field, and today I'm going to take the session based on your important paper, that is CUET. Okay, so this is the first session. So guys, please everyone join, then we'll start. Yes, Sika, good evening Sika. So guys, we'll discuss the techniques, that calculation techniques. So after 2-3 class, we'll go to the chapter one by one, like arithmetic chapter, all those chapter like ratio, proportion, then percentage, profit loss, time work, time speed, distance, then mensuration, then you can sort indices, number system, SCF, LCM, divisibility rule, each and everything we'll discuss. But before going to discuss any topic, this part is very important, because if this part will be fine for all of you, if then definitely you can solve the question quickly, because you know in entrance examination there is objective paper, so time is less and you have to score too much. That's why this is important. Yes, so Khushi, yes, Chandni, but sir हिंदी में ओके, हिंदी में भी बोल देंगे, दैट इज नॉट अ बिग इशू, मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो गाइज सब कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक. ध्यान से देखना, आई थिंक देयर इज नो लैंग्वेज प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि कैलकुलेशन पढ़ना है. ठीक है, यहाँ पे कोई अर्थमेटिक क्वेश्चन नहीं आएगा, ओनली कैलकुलेशन, डिजिट्स विल कम. ओके, डिजिट्स विल कम. ठीक है, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहां से. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक ऑन कैलकुलेशन. सो मास्टर स्ट्रोक ऑन कैलकुलेशन, so what are the parameters, what is the important of this calculation? This part is you have to remember, and I am giving you the flow chart of the calculation, and one by one we can discuss the all things related to the calculation part. क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में जब सिंप्लीफिकेशन कभी आ जाता है, कभी रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज के आते हैं, सारे टॉपिक में वो यूज होगा. ठीक है, चलिए, तो चांदनी एंड खुशी ध्यान से देखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूं. सबसे पहले ध्यान से सोचो, माइंड कैलकुलेशन मतलब सिखा दूंगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने यहाँ के कुछ की पॉइंट्स दिए हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीज आर सम की पॉइंट्स. अब बच्चा बोलता है की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, तो 8 का क्यूब मेमोराइज करना है. तो 8 का क्यूब इज मोबाइल हाफ जीबी डाटा. जब डाटा ओवर होने लगता है तो 512 MB का आता है, जो अब आपका इतना डाटा रह गया, मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू 8 का क्यूब, दैट इज मोबाइल हाफ जीबी डाटा. ये लिंक मैं कर रहा हूं, मैं सिंक्रोनाइज करके इसको एक तरह से एक आपको लिंक कर रहा हूं, जो कैसे इसको हिट करना है दिमाग में, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, 32 का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1024 MB डाटा, मींस मोबाइल 1 GB डाटा. तो दीज टू डाटा आर इंपॉर्टेंट. मैं सब कुछ नहीं लिखा रहा, बट जो भी लिखा रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दीज आर द मींस मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड डाटा इन योर एग्जाम. 9 का क्यूब एवरीवन नो, आई नो 9 का क्यूब 1 to 10 का क्यूब एवरीवन नो, बट 27 का स्क्वायर people don't have idea, means some of you don't have idea, but yes, 1 to 30 square is important. So 729. 16 का क्यूब that is equivalent to 64 का square, and that is equivalent to 8 का power 4 also, and that value is 4096. okay, if anyone having the doubt please ask me. मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट रह चुका हूं, तो आई नो वेरी वेल जो क्या क्या फेसेस करने पड़ते हैं.
तो कैलकुलेशन तो अच्छा रखना पड़ेगा. आफ्टर दैट व्हेन द टॉपिक विल स्टार्ट योर फ्लो विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. Means you can catch each and everything. Percentage 45% of 7500 immediately you can hit because we have technique. That's why. Okay. 25 का cube is 125 का square. Both are same. Both are same and that is equivalent to 15625. Correct. Table should be strong for all of you. 1 to 20, not more than that. At least 1 to 20 table you have to memorize. Okay. A square 1 to 30, not 1 to 25. If 1 to 25 you already memorize, that is okay, but 1 to 30 will be better because some of the data are very frequently used, like 29 square, 27 square, 26 square, 24 square. Both are almost same, only 576, 676, 100 difference. Okay. क्लियर नहीं दिख रहा है? ओके, चांदनी दिखना चाहिए. चलो मैं यहाँ हट जा रहा हूँ, ठीक है. And cube 1 to 25. Cube is also important for 1 to 25. So this is simple for fast calculation. There are few things you have to memorize. इसको दिमाग में रखना है, ठीक है. Now I am giving you one flow chart. Just give me some time. Where is the flow chart? This is the flow chart. This is the important chart. और इस चार्ट से मैं बताऊंगा जो कैसे कनेक्ट करते हैं. If you want to good in your calculation, so how to improve your calculation part? So first thing, this is the very important and very basic chart, that is the percentage chart. Okay, अब दिख रहा है चांदनी? प्लीज टेल मी. अब दिख रहा है? आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल. ओके, थोड़ा सा यहाँ फॉन्ट छोटा मैंने किया है, बट मैं ये बता रहा हूँ. दिस इज द परसेंटेज चार्ट, प्रतिशतता का चार्ट बोलते हैं. द सेकंड वन इज डिविजिबिलिटी रूल, मींस विभाजकता का नाम, लाइक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 3 4 5 नहीं, 5 नहीं, 6 7 8 9 then 11 then 13. That will be the part of divisibility rule. So second में divisibility rule also play a vital role because in your exam question जो arithmetic based question होते हैं, you can solve that type of question using divisibility rule. That can be possible. Generally होता है ये चीज, ठीक है. Third one, these and these three already I told you. At least ये memorize रखो, ठीक है. This is the important, that is the multiplication rule, and basically I am going to discuss the multiplication rule of 5. मैं 5 का multiplication rule मैं discuss करने जाऊंगा, ठीक है. Yes, yes. And ये जो है, this is a amazing technique. मैं तो यहाँ लिख देता हूँ amazing technique. Why this word is amazing came here? मैं बताऊंगा cancellation technique कहीं नहीं मिलेगा. That is created by me. So I will explain each and everything related to cancellation technique. Ultimate technique है. Because I also faced some problem at the time of preparation, so I know very well use of this technique is very very important. ठीक है. And digit sum rule only applicable in case of simplification. Whenever the question will come, only one question will come. Okay, that's it. So this is the flow chart. So we'll start from percentage chart. Okay, then we'll come back to multiplication, then divisibility, cancellation, and at the last square and cube. Okay, so this is the session for today. We have to discuss at least this and this part at least. Okay, so now, yes, so guys, please listen carefully. Now percentage chart. So before going to solve the percentage chart, first important chart, which one? Let's see. Wait. Now this one. So this one is the basic percentage chart. Yes. So Chandni and yes, everyone, please listen carefully. So percentage chart is a very basic chart. बहुत ही basic chart है, ठीक है. And use of this chart is very important because we can solve the question in arithmetic like percentage based question, then profit loss based question, then SICI based question, time and work based question, efficiency वाले question. So this chart is linked with the all the arithmetic chapter. Okay. So you can use the data and solve the question quickly. So how to connect this one? So I am giving you the idea. Like this one is the first one, this one is the second one. These two are easy. Then you can come back to this is third one, this is fourth one. So how to connect कैसे करोगे? That is important. ठीक है. सर फिर से वही नहीं दिख रहा है. एक मिनट चांदनी, आप एक बार फिर से रिफ्रेश करो प्लीज and then join. I think there is some problem with the net from your side. I think यहाँ पे ठीक है. जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन पे भी chat is visible, everything is okay. So now like 20% जैसे मैंने लिखा है, so percentage बांधते हो per 100, तो 20% is 20 by 100. तो सबको पता है 20 by 100 means 1 by 5 means 20 and upon 100. करेक्ट? तो ठीक है 1 by 5. बट अब इसको थोड़ा सा लिंक करते हैं, easy to learn. 20 का 40 means 2 time. So 1 by 2, 1 by 5 का 2 time, that is 2 by 5. Then 20 का 60, that is 3 time. So we can write 3 by 5 because denominator will be fixed, that is 5. ठीक है.
देन 20 का 80, 80 कितना होता है 4 टाइम, सो 4 टाइम मींस 4/5, करेक्ट। तो दिस इज 4/5। 20 का 120, यस दिस इज 6/5 बिकॉज 6 टाइम। 60% का डबल 120%, 40% का 3 टाइम, then 20% का 6 time. So simple, this is a simple chart, so that's why I'm writing down this is a easy one. Okay, so now this is the first chart, so this is a very simple. Second, if any number, guys, if you have any doubt please ask me, कोई भी doubt हो तो आप पूछा करो, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, जो मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है, ठीक है। and second is related with the 5. Okay, so 5, any number end with 5, मैंने जैसा कि बताया भी था, any number end with 5, the simple formula is simple thing is simple, you can cancel that term with 5, numerator will cancel by 5, जैसे 15% है, मैंने यहाँ 45% लिखा, so 45% means denominator is fixed, that is per 100, so numerator will be cancelled out by 5, so 5 9 ja, this is 5 9 ja, similar this is 5 3 ja, this is 5 9 ja, this is 5 11 ja, this is 5 13 ja, this is 5 19 ja, and this is 5 17 ja, correct. Now denominator it will be fixed. Why denominator will be fixed? Because all of you know percentage means 100 will cancel out by 5, so 520 ja, so denominator is fixed in this chart. So this is a very simple, whenever the number is ending with 5, जब कभी कोई भी नंबर होगा, हाँ गोपाल जी ओके, जब कभी कोई भी नंबर से, हिंदी ना समझाओ प्लीज, ओके चांदी ठीक है। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आप किसी भी, ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ अभी आपको, कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है, मतलब अंत में उसके 5 है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसको कैंसिल करोगे किससे, 5 से, ठीक है, और वही न्यूमिनेटर हो जाएगा, आप उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो दो आपकी इजी थी। अब मैं एक आपको ये पहला वाला बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है गोपाल जी चांदनी ध्यान से देखना आप दोनों, यहाँ पे जैसे 25% मैंने लिखा, तो 25% इज 1/4, जैसे आपको पता है 25/100 1/4, तो 100 में 25% अगर पार्ट निकाल देंगे 1/4, तो बचेगा कितना, 1 - 1/4 3/4, तो अल्टीमेटली इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 - 25 75, तो जो बच गया वो सब ये है, और जो है कंप्लीट वो ये है 25, तो किसी एक को कनेक्ट करो, टोटल कितना हो गया 100%, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा चीज है, ठीक है। 12.5% आपको पता करना है, तो 12.5% ऐसा है जो, जैसे 1/8 मैंने लिखा हूं, ठीक है, इसको तो 1 - 1/8 बच गया कितना 7/8, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो 100 हो जाएगा, 100% हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हो ये रहा, अगर 25% काम हो गया तो रिमेनिंग आप बचा हुआ कितना होगा, 100 - 25 75। सिमिलर अगर 12.5 आपको पता है जो 1/8 है, तो 100 - 12.5 दैट इज 87.5, तो सिंपल है, 1 - 1/8 तो ये 7/8, तो ये भी लिंक हो गया, मतलब ये तीनों डाटा जो हैं इसका अगर हम सम करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा आपका 100%, ठीक है। प्लीज रिपीट थर्ड लॉ सर, ओके। मन्नत शर्मा पूछ रहे हैं थर्ड, एक मिनट, तो हम लोग थर्ड तो यहीं पे थे ना, ठीक है, चलिए आपके लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए तो मतलब फ्लो आ जाएगा क्लास के अंदर, आगे तो टॉपिक जब स्टार्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन में तो टाइप चेंज होगा, बट ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। तो देखिए जैसा कि अभी मन्नत ने बोला सर प्लीज रिपीट थर्ड लॉ, ओके। सो 25% means 25/100 means 1/4, so one work suppose completed, या out of 100 25% आपने निकाल दिया, तो what is the remaining 75%, so if this is 1/4, so 1 - 1/4 remaining is 3/4, so 25% plus 75% that will equal to 100%, correct. So 1/4, so 1 - 1/4 3/4, so this is 3/4. Otherwise do one thing na Mannat, do one thing simple, 25% का 75%, that is 3 times guys, so 25 into 3, so what is 25 into 3, that is equivalent to 3, so 3/4, simple, okay. Second thing, 125 and 165, this is almost 5 times, you can connect easily at your end, आप अपनी, what is the difference between 2 and 3, what is the difference between 2 and 3, 2 and 3 means this and this, एक मिनट, what is your question, who told me sir both are ending with 5, yes, but you both are ending with 5, correct, I got your point, who told, Apurva, yes, so good point raised by Apurva. Actually these are the common data and these are means very uncommon, means 15% 45% people don't have idea, so do one thing, you can cancel out by 5 also,
5 also. If I cancel out by 5 also, you told me like what is the difference between 2 and 3? So 5 5 ja, denominator is 20. So definitely this will be after cancellation 1 by 4. So both the rule will be same. But these are the common data, these are the uncommon data, because 65%, 45% बहुत कम पूछा जाता है. That is less frequently asked data, because these two are, these means first, second, third, and then this one. These are the most common data, most common data. But good point raised by Apurva. Very good. Chalo. So similar, you can solve, you can connect data. So this is the first chart. Okay. Now come back to the next. This is the master chart. I am writing down, this is the master chart. So we'll discuss on this chart, not in this class. You can learn this one where this is important. मैं star भी कर दे रहा हूँ. This is important. Some data are very very important. These are the important data for your exam point of view. Star करने का मतलब ही हो गया while I'm going to take means कोई star जब मैं कर रहा हूँ तो it means that is the important data for your upcoming exam. Okay, ठीक है. तो इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे because this is the master chart. Means complex fraction से percentage, complex part is given here. Okay, don't worry. Now come to the next. So this one over now. Yes. So now I'm going to start with the conversion chart. तो जो मैंने flow chart आपको बताया था like percentage chart, basis on that this is the important thing, because sometime in your percentage chapter sometime a man invests 85% or sometime a man invests 18.75% of his income, मतलब अपने income का वो इतना पैसा खर्च किया है. तो you have idea of this percent that was not in that chart. So sometime these data type question will come. A man invests 8.33%, sometime 18.75%. So this is very important for all of you. ठीक है सर, समझ नहीं आ रहा है चांदनी, बट समझ क्यों नहीं आ रहा है, ये मैं परसेंटेज चार्ट जो मैंने बताया अभी चांदनी, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं ये कन्वर्जन बता रहा हूँ, जो इसको कन्वर्जन में कैसे यूज करते हैं. जैसे चांदनी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लास्ट वाले में मैंने 12.5% आपको बताया. ठीक है, ध्यान से सुनना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे आपने बोला अभी समझ में नहीं आ रहा. 12.5% कितना था? 1/8. अब ध्यान से सुनना, ध्यान से. इसका हाफ क्या होगा आप खुद सोचो, इसका आधा क्या होगा? 6.25. सही लिखा ना मैंने? 6.25%. हाफ का मतलब क्या होता है? 1/8 का हाफ करना है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/16. सही लिखा? एवरीवन लिसन, इसका हाफ 12.50 का हाफ 6.25 मींस 1/8 का हाफ तो 1/16. अब ध्यान से देखना, 6.25 का दिस नंबर इज 3 टाइम्स. एम आई करेक्ट? यस. आप देखिए 6.25 का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो दिस इज 18.75. आप ऐसे समझो ना, 625 का 3 टाइम्स करना है तो सिंपल 1875 होगा. मतलब ये हुआ, अगर आपके पास रेफरेंस पॉइंट है बेसिक 50%, जैसे मैंने 50% बोला, 75% बोला, 25% बोला, तो अगर आपको पता है तो इसका अगर 3 गुना करेंगे तो ये वैल्यू नहीं आ जाएगा 3/16. ये मैं बताना चाह रहा था. ठीक है चांदनी, आपको समझ में आया? सॉरी, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो यही था. ठीक है, सो 3/16 कैसे आया वो मैं बता रहा था. ठीक है, तो हर चीज का एक रेफरेंस पॉइंट लो, जैसे आप वहां से कनेक्ट करो, यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन सॉल्व इजीली. ठीक है, तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो इस चार्ट को अब सॉल्व कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं. देखिए ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं सबके लिए, क्योंकि इसका आप यूज करने वाले हो. ठीक है, तो देखो आप ध्यान से. ठीक है, देखिए जैसे ये डाटा मैंने लिया तो आप इसको लिख सकते हो 50% और प्लस 6.25%. मैं आपको एक दो बता देता हूं, आप उसको लिंक करोगे. ठीक है, इसको मैंने लिखा 50% प्लस 6.25%. व्हाई? बिकॉज 56.25% वो चार्ट में नहीं है, बट वी हैव द रेफरेंस वैल्यू, बेस वैल्यू. जैसे सपोज करो मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं तो मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या है? ये ओरिजिन है. तो अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस में डिस्टेंस मेजर करूंगा तो दैट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट. तो यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस. तो फॉर दिस सम रेफरेंस पॉइंट इज क्या? बेसिक इसका क्या है? 50% प्लस 6.25%. यस, दिस इज 56.25. सिमिलर अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको भी मैं लिख सकता हूं 50% एंड प्लस 8.33%. सिंपल सा चीज है कि नहीं? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 50% प्लस 8.33%. ठीक है,
अब आप इसको कनेक्ट करो, क्योंकि ये वैल्यू जैसे मैंने चार्ट में लिखाया था 1/12 होता है, ठीक है। और ये 1/12 कैसे होता है ये आप एक बार देखना। जब मैंने 16.66 लिखा था, तो 16.66 100 का 1/6, मतलब 100 को अगर 6 पार्ट में डिवाइड करोगे, इफ यू आर गोइंग टू डिवाइड 100 into 6 पार्ट, so 1 part is 16.66, so 1/6. half of this is 8.33. yes, definitely आप लिख सकते हो 1/6 का हाफ। क्यों नहीं लिख सकते 1/12? डेफिनेटली 1/12 करेक्ट है। देखो किसी को भी डाउट हो रहा है पूछा करो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, जो 1/2 प्लस 1/16, और इसको लिख सकते हो आप 1/2 एंड प्लस 1/12। ना यू कैन टेक द एलसीएम एंड सॉल्व दिस। तो आप लिंक करके सॉल्व कर सकते हो, जिसके लिए कुछ बेसिक वैल्यूज पता होने चाहिए, जो मैंने चार्ट में दिखाया है। तो इस पे आप प्रैक्टिस करोगे घर में, डेफिनेटली यू कैन गेट इट, डेफिनेटली, ठीक है। तो ये तो आपका एक पार्ट था, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, कैंसिलेशन थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन टेक्निक पार्ट 1, अब हम लोग इस पे कुछ देर रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सीक्वेंस है पढ़ाने का, जो अगर आप सीक्वेंस में इसको आप करते हो तो डेफिनेटली आपके स्पीड में कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपका अप होगा, डाउन तो होगा नहीं, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा है मल्टीप्लीकेशन टेक्निक पार्ट 1, मतलब जो गुणनफल का जो विधि होता है, टेक्निक्स जो बोलते हैं, पार्ट 1, वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 11 का रूल भी है, ठीक है, और 5 के रूल पे ज्यादा है। 2 मल्टीप्लीकेशन 3 तो है, बट 5 का रूल इंपॉर्टेंट है, वो आगे बहुत सारे चैप्टर्स में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है टेक्निक, जिसपे हम लोग 1 by 1 अब जाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे, तो ये एक एक्स्ट्रा टेक्निक है जो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें टेक्निक में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछना। अभी पहले आप टेक्निक पढ़ लो क्या बोल रहा है। टेक्निक ये है, जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी 2 and 3 डिजिट, मतलब या तो 2 अंकों की संख्या हो या 3 अंकों की संख्या हो, ठीक है। 2 and 3 डिजिट, जैसे ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है, ठीक है। विच सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज 10, जिसके अंतिम के 2 संख्याओं का योग 10 हो, एंड फर्स्ट डिजिट विल बी सेम। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। पहले आप रूल पढ़ लिया करो, उसके बाद आप पूछोगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि आप समझ रहे हो जो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया जो 63% ऑफ 6700, सपोज परसेंटेज, सिंपल क्वेश्चन। तो इस केस में आप क्या करोगे, 63/100 and into 6700, so this will be cancel out, मतलब percentage will cancel these 2 0, तो ultimately you can multiply simple 63 into 67। it means आप ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक में बता रहा हूं, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं। what is important in this particular sum? important thing is like यहाँ पे sum of last 2 digit is 10, yes, sum of last 2 digit is 10, definitely। आप देख लो यहाँ पे है 2 plus 8 10, 3 plus 7 10, 4 plus 6 10 and 4 plus 6 10, तो ultimately 10, unit place is 10, okay। so जब 10 हो और पहली संख्या सेम हो, दोनों पे पहली संख्या देखो दोनों में सेम है, मतलब यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सिंपल यू कैन मल्टीप्लाई 8 into 2, तो आपका 16 हो गया, तो वैल्यू इज डायरेक्टली मल्टीप्लाई, आप यूनिट नहीं लिखोगे, यू कैन मल्टीप्लाई एंड यू कैन डायरेक्टली पुट द डिजिट एट द एंड, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ सेकेंड इज व्हाट, जो पहला डिजिट सेम है, बिकॉज रूल इज फर्स्ट डिजिट विल बी सेम, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस रूल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो 9 multiply with the next digit, 9 multiply with the next digit, okay। so 9 into 10 90, 6 into 7, okay, that is 42, 7 into 8, that is 56, and 11 into 12, that is 132। so this 132, but unit पे क्या होगा, 3 into 7, that is 21, then 4 into 6, that is 24, and then 4 into 6 24। so this will be the answer of all these sum। अब आप बताओ किसी को क्या समझ में इसमें नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब रूल ये है, जो अगर सम ऑफ 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट का सम 10 हो और पहली संख्या सेम हो, देन यू कैन ओनली अप्लाई दिस रूल। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग लाइक 83% ऑफ
8700, तो डेफिनेटली वी कैन अप्लाई बिकॉज लास्ट का दो संख्या का सम कितना हो गया 10। आ रहा है समझ में अब सर? ओके सौम्या, वेरी गुड। मैं बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, बट गुड सौम्या, वेरी गुड। सो यहाँ पे 83 और इंटू 87, देखिए रूल है ना, तो रूल को तो फॉलो करना पड़ेगा। और आप ऐसे भी बोल सकते, आ रहा है, ठीक है चांदनी, वेरी गुड चांदनी। तो अब आप ये भी तो बोल सकते हो, जो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आया, ठीक है अब आ रहा है समझ में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, अब चीजें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे बहुत टेक्निक, और आप ये भी बोल सकते हो मुझे बहुत पढ़ लिए, अब इतना याद नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस से होता, आज के दिन प्रैक्टिस करो खुद से, 4-5 सम लेके, डेफिनेटली यू कैन, यू हैव कॉन्फिडेंस, क्यों नहीं होगा। कोई और बाहर से आके कोई थोड़े कुछ कर देता है, हम ही लोग करते हैं ना जो भी है। तो एग्जाम क्रैक करना है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता तो टॉपिक डायरेक्ट ले लेता जब, लेकिन टॉपिक ले तो लूंगा, लेकिन स्पीड नहीं बन पाएगा। तो मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा बूस्टअप हो जाए सेशन 2-3, उसके बाद आ जाएंगे फ्लो में हम लोग टॉपिक पे, ठीक है। तो यही सेम सम है, ठीक है। चलो गुड अटेम्प्ट। चलो अब हम लोग यहाँ पे आ गए, मैंने बोला था परसेंटेज सब, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट लाइक वैदिक मैथ, मतलब बहुत सारे टेक्निक हैं, बट वो टेक्निक को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं अब थोड़ा यहाँ स्लो रहूंगा, ठीक है। आपको यदि लग रहा है तो यहाँ पे बहुत स्लो होना पड़ेगा। तो ट्रिक बेसिकली कॉन्सेप्ट जैसा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 तो इवन एंड ऑड। इवन का मतलब हो गया सम संख्या, ठीक है, और ऑड का मतलब हो गया विषम संख्या, है कि नहीं, ठीक है। तो सम संख्या एंड विषम संख्या, ठीक है। तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे हिंदी यहाँ पे नहीं लिख के सम विषम सिंपल रहने दे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, सिंपल multiplication of any digit but with 5, condition is 5. So suppose this number is multiply with 5, this number is multiply with 5, so number ending with 5 and these are the even number and these are the odd number, ठीक है। तो सम संख्या और विषम संख्या के साथ 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा। वो 5 सिंगल भी हो सकता है, वो 5 यूनिट पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। रूल इज वेरी सिंपल, जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना आप। any even number multiply with 5, any even number multiply with 5 gives 0 at the end, so you can write down 0. Simple, you can write down 0. Why 0? Because you know 2 5 ja, 4 5 ja, 6 5 ja, 8 5 ja, you know 0 will come, first thing. Second, any odd number multiply with 5, like 1 into 5, 3 into 5, 5 into 5, 7 into 5, 9 into 5, yes. 5 at the end. So what is the difference between even and odd? Even में multiply करने पे unit will be 0 and and odd will multiply then gives 5 at the end. Correct? These two are important. अब ध्यान से सुनना, ठीक है। Suppose 74 को 5 टाइम करना है, तो one simple way 70 into 5 350 and 2 into 5 sorry 4 into 5 20. Yes, why not? 350 plus 20 370. Definitely you are correct. But sometime अगर मैं लिख दूं आपको 144 into 5 then it will create a problem. अब आप बोलोगे ये तो टफ हो गया, ठीक है। तो क्रॉस क्वेश्चन बहुत होता है, होना भी चाहिए क्लास के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्या है, सिंपल सा फंडा है, जब कभी भी 5 से मल्टीप्लाई हो, 5 वाले में आप उसका हाफ ले लोगे, टेक द हाफ ऑफ दैट नंबर, टेक द हाफ ऑफ दैट नंबर मतलब आधा लोगे, मतलब 74 का आपको आधा लेना है। आधा का मतलब 5 जो होता है वो 10/2 होता है, तो 74 का अगर हमने आधा ले लिया तो क्या गलती किया, सिंपल सा चीज है ना, है। तो 74 का आधा कितना होता है, दैट इज 37। तो आंसर इज सिंपल, सो 37 मतलब 370 इज द आंसर। सपोज समवन आस्क यू 64 into 5, 64 into 5, तो स्ट्राइक करेगा इमीडिएटली जो 64 का आधा बोलना है, मतलब ओरली बोलना है, नो पेन नो पेपर 32, तो 320 हो गया। अगर आपको कोई पूछ रहा है 144 का 5 टाइम करना है, तो बोलो हाफ कर लेते हैं, तो बच्चा बोला हाफ करते हैं तो 720 हो जाएगा। क्यों, हाफ करना है ना, आधा करना है कि नहीं, हाफ करना है। तो इस तरह से आप पढ़ो ना, मजा आ जाएगा, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, चीजें बहुत आसान लगेगी, क्योंकि ये चीजें बुक में नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम आपको क्रैक करना है, यू हैव टू क्रैक योर एग्जाम। तो आई एम योर मेंटर, तो मैं आपको बता ही सकता हूँ, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 94 into 5, तो टेक द हाफ ऑफ 94, तो 94 का हाफ दैट इज 47। यस करेक्ट, करेक्ट है। 252 का 5 टाइम, 252 का 5 टाइम करना है, तो 252 का 5 टाइम होता है 126। यस
पहला 3 तो ऐसे ही खत्म हो गया, कुछ था ही नहीं। अब होगा प्रॉब्लम स्टार्ट, और यहां भी सेम जब मैं बना रहा हूं यहां भी सेम होगा, ठीक है। लाइक 39 का 5 टाइम करना है, तो 39 का हाफ आप तो बोलोगे 19.5, मुझे पता है, बट डोंट से 19.5, पॉइंट नहीं बोलना है, से लाइक 19, दैट्स इट। 0.5 तो 0.5 में 0.5 तो पहले आ चुका है, ठीक है। जैसे 65 का हाफ करना है, यस 32, डोंट से 32.5, 32, यस करेक्ट। 335 का हाफ करना है, आप सोचो क्या होगा, ठीक है। 167.5, तो 167 लिख दो, ठीक है। तो ये सेक्शन तो कंप्लीट हुआ आपका 5 वाला, बट अगर नंबर कंप्लीट यहाँ पे 25 हो, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, जहां पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा और मैं यहाँ पे फास्ट नहीं चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अब प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई एम गिविंग यू द आइडिया हाउ टू basically solve this type of sum in your exam, okay. So this is very important for all of you, ठीक है। चलो अब देखो आप, listen, suppose the number ending with 5 but 25, suppose I am writing down 32 का 25 टाइम, तो करना ये है, परसेंटेज चार्ट मैंने क्यों पहले पढ़ाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब परसेंटेज से आपको प्ले करना है, प्ले विद द परसेंटेज, लाइक 32 का 25%, टेक 32 का 25% मींस जस्ट दिस माइंड कैलकुलेशन, 32 का 1/4, 32 का 1/4, 1/4 मींस सिंपल 8, तो यू कैन राइट लाइक यहाँ पे, जो अगर हमको इसको करना है तो इसको हटा दो, 8 और 00। सो दिस इज द फास्टेस्ट टेक्निक, दिस इज द फास्टेस्ट टेक्निक गाइस, सॉरी। So this is the fastest technique. Yes, this is the fastest technique. So like 96 का 25 करना है, तो 96 का 1/4 ले लो, मैं बता रहा हूं कैसे लेना है, डोंट वरी, ठीक है। दिस इज 24, so 24 पे 00, that's it. Now you in your mind one question will come, so why 00, सिंगल जीरो नहीं, ऐसा कुछ आएगा दिमाग में। तो डू वन थिंग, आप अगर 96 का 25% लेते हो, तो परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई विथ 100 एंड डिवाइड। पहले तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, परसेंटेज बन गया, तो मल्टीप्लाई भी करोगे, दिस टू विल कैंसल आउट, तो नंबर विल बी सेम। नाउ थिंक लाइक 1/4 24, अब समझ में आया जीरो कितना आता है, तो जीरो तो प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। व्हाई यू आर फिटिंग जीरो, यस स्वामी आई गॉट योर पॉइंट, मुझे पता था ये क्वेश्चन आएगा, मैंने ही बोल दिया दिस क्वेश्चन विल कम डेफिनेटली। सो योर आंसर ऑफ व्हाई सौम्या दिस वन, ओके, दिस इज द बेस्ट टेक्निक, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। कोई आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ जो 144 जैसे मैंने बोला था 5 टाइम, इसका 25 टाइम क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल है, 144 का 25% ले लो, 1/4 माइंड से लेना है, 36 होता है, 3600, कोई पेन पेपर चला, दिमाग चला, तो यही चलाना है। और क्यों लिया वो मैंने प्रूफ दे दिया, परसेंटेज बनाने के लिए डिवाइड एंड इनटू करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 0 विल डेफिनेटली केम एंड सिंपल है, ठीक है। So I think Soumya your dot will clear right now, but the challenging term is like this one 32 and into 75, yes this is challenging term, 75 time 32 7 जा, I don't have idea, immediate बोल ही नहीं पाएंगे, तो आप इसके साथ प्ले कैसे करना है वो बता रहा हूं। 32 का 75 टाइम ले लो, सौम्या लिसन, 32 का 75 टाइम मींस 32 का 3/4, तो ये ओरल हो गया 24, तो आंसर आ जाएगा 2400, बोथ आंसर विल बी सेम 2400, इससे फास्ट कोई बना पाएगा, ओरल कर सकते हो आप 3/4 लोगे ना, तो 32 का 3/4 लेना है तो 1/4 ले लो, 8 और 8 का 3 जा 8 3 जा 24, नो पेन नो पेपर, सिंपल, नो पेन नो पेपर, दैट्स इट। और मैं क्या बोलूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अरे आपको किसी ने बोल दिया 65 से मल्टीप्लाई करना है, उसका भी ऑप्शन है, आप 65% लो ना, बात खत्म, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, ओके। सो सम्या आई थिंक डॉट क्लियर है, और डॉट अभी भी है, इफ यू हैव डॉट यू कैन आस्क, पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो गाइज इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, ओके।
ठीक है, क्लियर, वेरी गुड सौम्या, वेरी गुड। चलो नाउ आप बोलोगे एक दिन में बहुत कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है, इसलिए पहले क्लास में मैं अगर ज्यादा पढ़ा दूंगा तो सीरियसली आप थोड़े से परेशान हो जाओगे, तो डोंट वरी। व्हाट इज द नेक्स्ट वन, एटलीस्ट 5 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दीज आर द 2 पार्ट। यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने 2 पार्ट दिया है, क्यों दिया है मैं बता रहा हूँ। देखो नाउ अगेन 5 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बट द 5 इन डिफरेंट वेज। एक मुझे देखने दीजिए, हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, ठीक है, बट कंडीशन है डिफरेंस बिटवीन देम इज 10। डिफरेंस बिटवीन देम इज 10 मतलब उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10 हो, तभी आप लगाओगे ये टेक्निक जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे है क्रॉस क्वेश्चन, तो यहाँ पे होना चाहिए, और मैंने ही यहाँ क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, जो अगर डिफरेंस 10 नहीं हो देन व्हाट यू हैव टू डू, तो क्या आप करोगे, ठीक है। तो दोनों चीजें मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान से देखना आप, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन देम इज 10। अगर डिफरेंस 10 होगा तो क्या करना है। सो नाउ इन ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट दिस वन, इसमें नहीं है, इस दोनों में डिफरेंस 10 है, करेक्ट, एम आई करेक्ट, ठीक है। लिसन 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 एवरीवन लिसन, ध्यान से, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, अगर डिफरेंस यहाँ पे 10 हो, ठीक है, इफ डिफरेंस इज 10 तो राइट डाउन 75 एट द एंड। अब क्वेश्चन एराइज होगा 350 फंस जा, नहीं 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 चांदनी नहीं, गलत हो गया, ठीक है। सबसे पहले यूनिट 5 इंटू 5 5 ही रहेगा, ठीक है, 75 फिक्स होगा। अब आप पूछो ना क्यों 75 फिक्स होगा, आई एम टेलिंग यू, ओके। एंड दिस इज 4, दिस इज 3, ठीक है। 75 आने का रीजन है, इन दोनों के बीच में मिडिल में कौन आता है, 40, तो 40 माइनस 5 and into 40 plus 5, yes we can write, why not, we can write। तो अलजेब्रा आ गया ना, a plus b and a minus b, तो a minus b into a plus b that is a square and minus b square, करेक्ट। तो अल्टीमेटली कोई चीज 100 वाला है, उसमें से आप 25 माइनस करोगे, इफ यू सब्ट्रैक्ट 100 minus 25 डेफिनेटली 75 विल कम, ओके। सो आंसर बहुत ही सिंपल बता रहा हूं, इन दोनों में जो बिगर नंबर है उसका स्क्वायर -1 कर दो, तो टेक्निक क्या हो गया, बिगर नंबर स्क्वायर -1, बिगर नंबर स्क्वायर -1, बिगर नंबर स्क्वायर -1 मतलब 4 का स्क्वायर -1 दैट इज 1575। 13 एंड 11, यहाँ पे थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे ये 125 होगा, गाइस देयर इज अ मिस्टेक इन दिस स्लाइड, दैट शुड बी 125, यस। क्योंकि आप बोलोगे ये तो आपने गलत दे दिया, ठीक है, तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। दिस इज बेसिकली आई एम गिविंग यू द आइडिया बेसिकली, ठीक है, एंड दिस इज basically 125, I am correcting this one like 115 into 125, then it will be correct because then the difference is 10 na, then difference is 10 na, ठीक है। so difference is 10 तो 75 यूनिट पे, and 12 and 11 में कौन बड़ा है, 12, तो 12 का स्क्वायर -1, so that will be 143, so 144 -1, I think Chandni and Apurva and Suresh Kumar, anyone please tell me, यहाँ पे आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। सो दिस इज द वन कॉन्सेप्ट, इफ डिफरेंस इज 10 एंड डिफरेंस इज नॉट 10, सॉरी गाइस बार-बार जा रहा, ठीक है, सम टाइम डिफरेंस इज नॉट 10, तब क्या करोगे आप, ठीक है, यस क्लियर, वेरी गुड अपूर्वा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, आप बोलोगे, ठीक है, क्योंकि जो नया होगा आपके लिए उसको तो आप बोल दोगे यस ये तो कॉम्प्लेक्स है, बट कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, बट ये है जो प्रैक्टिस आप कितना करते हो और कितना आपको उस चीज के बारे में पता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस आई एम गिविंग यू द आइडिया अबाउट द सेकेंड पार्ट, ओके नाउ। सो सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। difference is not 10, difference is not 10, difference is 10, so there are 2 parts, okay. Now listen, 45 into 85, 75 into 35, so difference is not 10 here। second important thing, यहाँ पे एक चीज और देखने वाला है, अगर पहले दोनों सम ऑफ डिजिट इवन नंबर हो, 12 इवन नंबर, 7 3 10 इवन नंबर, 14 and 12, the sum of first 2 digit is even number
अब यहां भी दो कंडीशन होगा, इधर इवन इधर ऑड, ठीक है। तो इफ इवन विल कम देन राइट डाउन 25 एट द एंड। एंड कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन तो सिंपल है, मींस डिफरेंस इज नॉट 10, ठीक है। नाउ 45 into 85 तो huge difference, means 40 का difference, but unit is 25, that is very important, unit is 25. now अब आप करना है इसमें क्या, 8 into 4 करना है, 4 into 8 तो that is 32। एक बार दिक्कत होगा, आगे से दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लोगे। 32 और इसमें आपको ऐड करना है इस नंबर का जो सम हुआ था इवन, उसका हाफ, मींस हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर। So sum is like 12, so 12 ka half is 6, so you can add 6, so this is 3825. So 3825 is the answer of this particular sum. Please repeat, the data has some problem, please repeat, my data has some problem. Okay Manna, that's why I already told you there is some problem from your side, that's why you are not getting the exact ठीक है। For Manna, listen, there are two things. Either the number ending with 5 but difference is 10, like this is 10, this is wrong, actually this is 125, so difference is 10, then simple write down 75, okay, and first digit ka square means bigger digit ka square minus 1, so this is 15, bigger digit 12 and 11, bigger digit is 12 square minus 1, so this is 143. So this is the answer of this particular sum, but this is not the correct one, that's why I am just removing this, ठीक है। but on the right side if difference is not some Manna, then क्या करोगे, तो in that case do one thing, if difference is not 10 and sum of first two digit is the even number, then write down 25 at the end, अंतिम में 25 लिखना है और पहले दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई फर्स्ट टू डिजिट, so first two digit multiplication is 32 and then you can add the half of that number, जो सम आपने किया था, like 8 plus 4 12, 7 plus 3 10, 12 plus 14 26, so for the second sum 7 into 3 means 21 and 21 में half of this number, so 5, so this is 2625, this is 2625. For third sum 14 into 12, so 168 and plus 14 plus 12 26, so 26 का half, so that is 13, so 13 इसमें ऐड करेंगे तो 18125. so similar you can solve the question or sum in your exam when this type of multiplication will used, okay. तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था, मैं बोल सकता हूं the second part is little bit confusion because you don't have practice on that, that's why, otherwise this is not done, okay. So so ultimately this is the calculation based on 5. Let me check if another 5 is given, then मैं उसको ही बता देता हूँ, ठीक है। okay, so if you have any problem please ask me, okay. अगर कोई भी दिक्कत है तो आपके सामने है, you can ask me right now. तो सर ये नहीं समझा, no issue, I will again repeat, क्या हो जाएगा उसमें, ठीक है। ठीक है, क्लियर, चलो। नाउ दिस इज द गुड वन, बट उसके पहले मैं चाहूंगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, लास्ट मुझे लग रहा था, हु टोल्ड, गोपाल जी, ओके गोपाल जी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्या है, थोड़ा सा दिक्कत तो था इसमें, मैंने मतलब पहले भी बोला जो इसमें हो सकता है किसी को दिक्कत हो, तो बता देता हूँ यहाँ पे फिर से, आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन, ओके। देखिए ध्यान से क्या है लास्ट वाले में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जितने भी डाउट्स है पूछोगे, जितना पूछोगे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। लिसन, फॉर दिस सम 25 is okay, but 14 into 12, तो 14 into 12 little bit challenging for some of you, तो 14 10 जा 140 plus 28, तो 168 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई फर्स्ट टू, एंड उसमें जो ऐड करना है दैट इज द सम ऑफ दीज टू नंबर का half of sum of these two numbers, so this is 13, so basically this is 181, तो 18125 are, I think you are getting my point। तो गोपाल जी आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए फिर से, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके क्लियर है, आगे चले। तो ऐसे आप बना सकते हो कोई भी सम लेके, फाइन, वेरी गुड, नाइस गोपाल जी। चलिए
हाँ, तो मैं बोल रहा था जैसे कैलकुलेशन में ये हो गया, डिजिट सम बताना है मुझे, और इस पे क्वेश्चन है, और फिर स्क्वायर तो आज नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, ठीक है। थोड़ा सा डिजिट सम अगर समझ सकते हो तो समझ लो, ज्यादा नहीं। इस पे हम 2-3 क्वेश्चन भी कर लेंगे जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेट हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैक्सिमम आएगा, और अगर आप डिजिट सम का यूज करोगे तो यू आर वेरी फास्ट, सिंपल, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा आराम से समझिएगा, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट यहीं तक आज क्लास रहेंगे। अगले क्लास में हम लोग स्क्वायर क्यूब रूट सीखेंगे, जो उसके लिए अलग से फिर हम लोग थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा टेक्निक है डिजिट सम, ठीक है। अब देखो, आप पूछोगे डिजिट सम वेयर वी कैन यूज द डिजिट सम, तो व्हेन एवर द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विल कम, कॉम्प्लेक्स सम विल कम, देन यू कैन यूज द डिजिट सम। ओके, सो डिजिट सम इज नथिंग, इतना बड़ा कहानी लिखा हुआ है, इसको मैं हिंदी में एक लाइन बता देता हूं। सम ऑफ डिजिट, सपोज आई एम राइटिंग डाउन हेयर जो डिजिट सम ऑफ 35, तो सम ऑफ डिजिट मींस 3 + 5 दैट इज 8। यस, करेक्ट, करेक्ट है, ठीक है। सम ऑफ डिजिट, और उसको एक सिंगल डिजिट बनाना है, ऐसा कुछ मैंने लिखा होगा शायद। द डिजिट सम ऑफ ए नेचुरल नंबर इज गिवन बेस ऑफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इफ द सम ऑफ डिजिट विल बी 9। चलो ठीक है, हाँ। अगर सम ऑफ डिजिट 9 हो जाए, जैसे मैंने आपको पूछा डिजिट सम 135 का क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 + 3 + 5। सो इफ द सम ऑफ डिजिट विल बी 9, कंडीशन है, जैसे पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है और 22/7 भी होता है, ओके। अगर 9 होगा तो दैट टेंड्स टू बी 0, उसको हम लोग 0 एज्यूम करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग 0 एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बोला आपको दिस टेंड्स टू बी 0, तो 135 का डिजिट सम जो होगा वो आपका हो जाएगा 0, क्योंकि 9 आ गया, 9 को हम लोग 0 करेंगे। और डिजिट सम में कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, आप सम करते जाओ, जोड़ जोड़ के आंसर ला। जैसे सपोज एग्जांपल मैंने अभी दिया, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का चैलेंजिंग पार्ट क्या है, कोई आपसे पूछेगा एक सिंप्लीफिकेशन छोटा सा क्वेश्चन कैलकुलेशन का, तो आप बोलोगे सर मुझे तो यही नहीं पता जो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि यू हैव आइडिया 15%, 75%, 25%, बट यू डोंट हैव आइडिया 144% इज व्हाट। तो मैंने क्या बोला था, वेन एवर द कॉम्प्लेक्स सम विल बी गिवन, मतलब जब कॉम्प्लेक्स सम हो, देन इन दैट केस यू कैन यूज दिस परसेंटेज, सॉरी द डिजिट सम, ओके। समटाइम मल्टीप्लीकेशन, सपोज मैंने लिख दिया 364 into 28 प्लस समथिंग, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई, बट दैट इज कॉम्प्लेक्स, एट दैट टाइम यू कैन यूज द डिजिट सम। तो एटलीस्ट आज की क्लास में ये तो पढ़ लें, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है, आज कुछ तो एक अच्छा चीज और अच्छा बताए जिसको देख के मजा आ गया, ठीक है। तो ये होना भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है, थोड़ा सा इंटरटेन करिए, मैथ को आप इंटरटेनमेंट की तरह बनाइए, ठीक है, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है बात, बहुत ही सिंपल सा है। तो एक मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता, मैथ वीक है, मुझे नहीं पता इसको मल्टीप्लाई कैसे करना, हाउ टू मल्टीप्लाई दिस वन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सम ऑफ डिजिट किया, तो 4 + 4 + 1, 1 + 4 + 4, तो दैट इज इक्वल टू 9, 9 टेंड्स टू 0। तो ये सिस्टम अगर 0 हो गया तो 0 ऑफ समथिंग, द टोटल सिस्टम इज 0, सेकंड में आ गया, इसका वैल्यू मैंने 0 लिया अकॉर्डिंग टू डिजिट सम, ठीक है। फर्स्ट थिंग ध्यान से देखना एवरीवन, ठीक है। माइनस, अब यहां पे देखो 4 + 4 कितना होता है 8, एंड इनटू 8 + 5 13, और मैंने क्या बोला था, मेक इट एज अ सिंगल डिजिट, डिजिट सम में सिंगल डिजिट। सपोज 24 है तो 2 + 4 दैट इज 6, और सपोज 246 है तो 2 + 4 6 + 6 12, 12 भी नहीं है, 1 + 2 3, तो एक उसका 246 का डिजिट सम हो जाएगा 3, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जैसे मैंने क्या बोला अभी आपको 246 बोला था ना, तो 2 + 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 8 6 14 हो गया, ये 6 6 12 हो गया ना, तो इसका डिजिट सम 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसे करो। तो इस क्वेश्चन में देखो अब क्या है, 8 × 8 + 5 13, तो 13 का डिजिट सम 4, तो 8 4 जा 32, 32 का डिजिट सम इज इक्वल टू 5, तो 0 - 5, सिंपल। तो इसका डिजिट सम ओरली यू कैन सॉल्व, डिजिट सम इज इक्वल टू 5, ओके। नाउ on the right side, sorry, wait, sorry, हाँ, देखिए ध्यान से आराम से पढ़िए इसको, ये अच्छा चीज है, मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 2 + 0 + 0 2 एंड प्लस x। तो अल्टीमेटली अगर मैं 5 को इधर ले जाऊं तो x + 7 इज इक्वल टू 0, सही है ना, x + 7 इज इक्वल टू 0।
अब x का कितना वैल्यू दें कि ये 0 हो जाए, तो x का वैल्यू 2 अगर आएगा तो 2 में 7 ऐड होगा तभी नहीं ये देगा 0, क्योंकि 9 का वैल्यू 0 होगा। अब आप ऑप्शन में चलोगे तो 9 1 10, इसका डिजिट सम 1, 7 2 9, इसका डिजिट सम 0, 7 1 8, 9 2 11, 11 का मतलब 2, और ये 7 2 9, 2 ऑप्शन इसमें गलत होना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 9। तो अल्टीमेटली आप देख लो क्या आना चाहिए, आपको 2 चाहिए, तो 29 अगर हम लेते हैं तो 2 + 9 11, 11 का डिजिट सम इज इक्वल टू 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, दैट विल बी 2, तो आंसर आ गया। तो जिस दिन प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छा, उस दिन आप बोलोगे जो मतलब कुछ है ये अच्छा चीज, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में यूज नहीं होता है, सिंप्लीफिकेशन में यूज होगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, ऐसा भी क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए क्लास में, इफ 2 ऑप्शंस आर देयर तो क्या करेंगे, वो अच्छा क्वेश्चन होगा। अगर 2 ऑप्शन आ गया तो क्या करोगे, तो वो एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। सर प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। ओके सौम्या, मैंने बोला कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होती है जिसको समझना जरूरी है। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है सौम्या, एक बार मैं फिर से, तभी तो मैंने बोला आज डी सम तक रखेंगे, ज्यादा नहीं, लेकिन डी सम तो अच्छे से सीख लेंगे ना एटलीस्ट। देखिए क्या है, क्योंकि मैथ के अंदर अगर आपका जितना अच्छा आपको पता है ट्रिक्स टेक्निक्स बेसिक के साथ, ऐसा नहीं है सीधा सीख लिए ट्रिक, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है, उतने ही आप फाइन हो जाओगे कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले ये मत बोलना जो क्या पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग में, अरे जो पढ़ा रहे हैं उसका वैल्यू आगे पता चलेगा, अभी थोड़े पता चलेगा आपको। आप बोलोगे क्या है नहीं है, इसका वैल्यू पता चलेगा ना, क्योंकि मैं आपसे सारा यूज करवा लूंगा। अभी कैंसिलेशन टेक्निक पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो बहुत ही कुछ अच्छे अच्छे चीज अभी चलेंगी जो आपको पता चल जाएगा जो क्या होने वाला है अभी, ठीक है। तो चलो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नाउ लिसन, यस, ध्यान से देखना। सम ऑफ डिजिट, सिंपल, व्हाट इज द डिजिट सम ऑफ दिस? सो सम ऑफ डिजिट इज 9, 1 + 4 + 4, लिसन सौम्या दिस इज इंपॉर्टेंट, 4 + 4 + 1 दैट इज 9, एंड 9 टेंड्स टू 0। तो अगर ये टेंड्स टू 0 हो गया तो 0 into समथिंग, तो दिस सिस्टम इज बेसिकली 0 बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिजिट सम, नॉट द मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। क्लियर, फर्स्ट थिंग। तो वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग डिजिट सम इज इक्वल टू 0, बट यहां 0 नहीं होगा क्योंकि 4 + 4 8, डिजिट सम ऑफ 44 इज 4 + 4 8, ऑफ मतलब इनटू, ऑल ऑफ यू नो, और 8 + 5 13, 13 का डिजिट सम 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4, तो 8 into 4 दैट इज 32, 32 का डिजिट सम 5, तो 0 - 5। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग माई पॉइंट सौम्या, आई थिंक, ठीक है चांदनी, चलो सही है। 0 कैसे, अच्छा चांदनी अभी मैंने पीछे एक लाइन यहाँ बताया था, यहाँ पे आपने ध्यान दिया कि नहीं, जो अगर सम ऑफ डिजिट 9 हो जाए तो उसको हम लोग 0 एज्यूम करते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट अगर 9 हो जाए तो उसको हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ था ना 5 + 3 + 1 9, उसी तरह इसमें आपका 4 + 4 + 1 9 हो गया, 9 को हम लोग डी सम में एज्यूम 0 करते हैं। अब ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 0 - 5 जो है, तो यहाँ पे 0 and -5 हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में 2 + 0 + 0, तो दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज x, मतलब जो वेरिएबल है जो निकालना है दैट यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज x। तो अल्टीमेटली इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो x + 2 + 5 7 का वैल्यू 0, तो x + 0 कब होगा आपको ये सोचना है, ये फास्ट आप करना, अभी मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा आपको लगेगा। x का वैल्यू कितना चाहिए जो राइट साइड में 0 हो जाए, तो साथ में कितना ऐड करेंगे, 2 चाहिए, 2 से क्या होगा 7 to 9 बन जाएगा, और 9 तो 0 होता है। तो इस सारे में देखिए किसका सम 2 आता है जोड़ के डिजिट सम में, तो 9 1 10 तो डिजिट सम 1, 7 2 9 तो इसका डिजिट सम 0, 7 1 8 तो डिजिट सम 8, 7 2 9 सॉरी 9 2 11 तो 11 का डिजिट सम 1 + 1 2, करेक्ट है ना। ये फास्ट करना पड़ेगा, तो आप 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। तो आई थिंक नाउ सौम्या एंड चांदनी यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देख लो क्या आएगा, वही आंसर है, हो गया। यही सारी चीजें है ना आपको समझनी पड़ेंगी, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक और मजेदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई एम गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये नहीं एक और कहाँ गया ये। अब ये क्वेश्चन क्यों अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज यू नो आपको ये आता ही नहीं है फास्ट, आपको ये आता ही नहीं, ये आ सकता है क्योंकि यू नो 100 - 1 इज 99, बट आप फास्ट ये नहीं कर सकते। दिस इज द चैलेंजिंग टर्म, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द आइडिया ऑफ डिजिट सम, नथिंग एल्स।
तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं तो आप बोलोगे कितना पढ़ा दिए, ठीक है। सो लाइक दैट, ठीक है। देखो 9 + 9 18, तो 990, तो दिस सम इज 0। आई थिंक अब आपको समझ में चीजें आ रही हैं। अरे 9 9 18 18 1 + 8 9, जब यही 0 तो 0 इंटू समथिंग, तो ये पूरा सम ही 0 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 7 + 2 9, एक सर्टेन नंबर भी 0 हो गया तो ये सिस्टम भी 0 हो गया, तो 0 + 0, करेक्ट, ठीक है। अब यहां आइए 9 4 13, 9 4 13, ठीक है। तो 13 मतलब ये 4 हो गया, और इंटू 9 6 15, 15 का मतलब 5 1 6 हो गया, तो 6 चौक 24, 6 4 जा 24, तो 24 मतलब दिस इज 6 and that is equal to x. तो ultimately according to this sum x plus 6 is equal to 0, यही होगा ना, x plus 6 is equal to 0। अब आप बताओ, tell me what is the value of x? x should be 3। why 3? if this will 3, तो 3 plus 6 is equal to 9, 9 tends to 0, 9 tends to 0, simple, 9 tends to 0। तो 3 चाहिए, 3 के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, जैसे ये आप करोगे तो 3 + 9 + 9, तो 9 9 18 3 21 21, 9 + 9 + 3 21, 21 का डिजिट सम 21 का डिजिट सम 3, तो डेफिनेटली यू वांट दिस वन। अब आप इसको करोगे तो 3 + 6 9 होगा ना। तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं इसका स्पेशल सेशन भी लूंगा कभी, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ डिजिट सम ही आपको बताते चलूं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आई होप दिस विल बी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आप इससे ज्यादा अगर आज पढ़ोगे तो अब आपको हो जाएगा क्या, दिक्कत, ठीक है। अब आपको हो जाएगा दिक्कत, नथिंग एल्स, ठीक है। तो आई थिंक अप टू दिस ऑल ऑफ यू क्लियर। तो रेस्ट जो इसमें है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं स्क्वायर एंड क्यूब रूट डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो आई थिंक देयर इज जबरदस्त टेक्निक है सर गोपाल जी, थैंक यू। टेक्निक बहुत है गोपाल जी, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जो मॉर्निंग में भी आप यूट्यूब पे आ सकते हो, कुछ क्लासेस फ्री चल रही हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको अगर कुछ और भी मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ तो हम लोग डिटेल में काफी पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज द पेड वन, ठीक है। बट यस क्लासेस, चूंकि मेरी क्लासेज आज से स्टार्ट हुई है इसलिए, ठीक है। और अच्छा लगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी, अपने डाउट्स जो भी है आप चैट बॉक्स में यहाँ लिखे करो, ठीक है, पूछा करो। और ऐसे और टेक्निक लेके मैं आगे भी आऊंगा, इसलिए मैं शुरू में 2-3 क्लास में आप ये मत बोलना जो क्या चल रहा है, जो चल रहा है उसका यूज करेंगे आगे, जिसमें मजा आ जाएगा, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट। प्लीज सम क्वेश्चन फॉर दिस ट्रिक। मन्नत डू वन थिंग, ये क्वेश्चन है सर मॉर्निंग में क्या टाइम है यूट्यूब पे, चांदनी एट 10 AM। आज तो 10 चला, कल भी 10 होगा, कुछ चेंज होगा तो यूट्यूब पे अपडेट हो जाएगा, बट राइट नाउ 10, ओके 10 AM, ठीक है। हाँ तो मैं ये बोला था, क्या तो बोल रहा था मैं, आपने किसने बोला क्वेश्चन, हाँ जिसने भी, यहाँ पे मन्नत, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, इसको घर पे बनाना, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। कुछ इसमें है, कुछ इसमें है ट्विस्ट भी कहीं कहीं, वो क्रॉस क्वेश्चन अभी नहीं हुआ तो इसलिए मैंने बताया नहीं, बट विल डिस्कस इन माय अपकमिंग क्लास, ओके ओके, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है गाइस। चलो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, बाय बाय। थैंक यू अपर्व, थैंक यू चांदनी, थैंक यू सुरेश, थैंक यू मन्नत, गुड टू सी यू, ठीक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, मैंने जैसा कि बोला आपको, ठीक है, चलो।